Bismillahirrahmanirrahim. How are you, class 6? That's good. You people are giving me very good response. And you have written very good stories, and some of you have written excellent stories. And some of you have decorated the stories and drawn the giant, and then I'm very happy. Thumbs up to you people. Today, बच्चे, we are going to do picture description. Do you know what is picture description? Some of you might be knowing that what is picture description, and some of you may not be knowing that. Okay, ji, picture description. Picture description, when we give you a picture and you are going to tell that what is happening in the picture, or what people are they, what are they doing, and you are going to discuss each and everything in detail. That is called picture description. When we describe a picture, some instructions are already given to us, that what type of tense we are going to use, or what type of things we are going to discuss, or either we are going to use adjectives or not. So all these things we will discuss later on. First we have to discuss our objectives today. After attending today's lesson, you will be able to describe the given picture with 90% accuracy at least, inshallah. Use present continuous tense and is/am/are to describe the picture. You will be able to use at least 6 adjectives in your writing. You will be able to use the given vocabulary in your writing. You will be writing in form of a paragraph. Paragraph, what is a paragraph? I explain each and everything, especially for the revision of the previous students and for the knowledge of the new students. ठीक है, कुछ नए बच्चे आते हैं जिनको ये चीज़ें वो नहीं कर चुके, तो इसीलिए इन चीज़ों को दोबारा से हम डिस्कस करते हैं. बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पॉइंट्स में लिखते हैं. नंबर 1 सेंटेंस एक लिख लेते हैं, फिर उसका नंबर 2 देते हैं. दैट इज़ नॉट पैराग्राफ. पैराग्राफ होता है बेटा जब आप कुछ लिखना शुरू करते हैं और आप जुमले लिखते चले जाते हैं और आप उनको ब्रेक नहीं करते, ठीक है ना, एक सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते, तो वो दैट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर एज वेल और योर पेरेंट्स एज वेल. Okay ji, so these are the objectives, and I ask you that we will describe this picture in present continuous tense. Present continuous, I think, is the easiest tense, because we teach this tense, I think, from class 1 or maybe from class prep we start teaching you this tense. So what is present continuous tense? Let's move to the next slide. G, present continuous tense, this is only the revision of the tense. What is the formula? Subject. What is subject? The doer is subject. वो noun और pronoun जो कोई action कर रहा है is called subject, जिसको आप उर्दू में फाइल भी कहते हो. Am I clear? So subject plus is/am/are plus first form with ing plus object means के आप जब सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट के मुताबिक आपने चूज करना है कि क्या उसके साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दे लगाया है तो उसके साथ आर आएगा. ये बी की प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, बी की ये तीनों प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करेंगे कि क्या इज आ रहा है, एम आएगा या आर आएगा. एम सिर्फ आई के साथ ही आता है. आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. और सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ इज आता है. और यू, आई, सॉरी आई नहीं, दे, वी, यू एंड प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ क्या आता है, आर आता है. अच्छा जी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी. फॉर एग्जाम्पल जंप है तो जंपिंग हो जाएगा, ईट, ईटिंग, रन, रनिंग. सेम इज द केस विद अदर्स. प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे काम वाक्य हो रहा है. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ही इज जंपिंग, वी आर लाफिंग, यू आर रीडिंग अ बुक, आई एम हेल्पिंग हिम, एटसेट्रा. सो दिस टाइप ऑफ टेंसेज यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है. और ये भी जरूरी नहीं है कि हर आपका जुमला इसी टेंस में होगा.
आप इसके अलावा यानी कि कहीं पे दिस इज अ काउ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे उसकी जरूरत होगी तो वी विल शिफ्ट टू दैट वन ऑल्सो, बट जहाँ पे एक्टिविटीज टेक प्लेस कर रही होंगी, जहाँ पे एक्टिविटीज हो रही होंगी, तो वी विल राइट दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस पिक्चर you can see, this is very interesting picture. I love this picture because there is variety of things, variety of animals, variety of activities taking place in this picture. Beta, when we are going to describe any picture, we should be a very good observer, right? We have to observe each and everything what's going on in the picture. So for your help, you can see in the lower part of the picture, they have given you vocabulary of different things. For example, in the corner there is a calf, right? Now baby of a cow is called calf. So next is cock, cow, donkey, tractor, trailer, goat, farmer, sheep, hay. Hay किसको कहते हैं बेटा? भूसा या घास जो कि हम एनिमल्स को खिलाने के लिए देते हैं। जैसे कि हम किसी भी शीप को दे सकते हैं, कौ को दे सकते हैं, डंकी को दे सकते हैं। इनको खाने के लिए जो हम घास देते हैं या भूसा देते हैं, दिस इज कॉल्ड हे। ओके जी, नाउ यू कैन सी फार्म हाउस, बार्न वो कमरा होता है जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गंदम को स्टोर करते हैं। आप में से भी कुछ बच्चों के घरों में एक ऐसा कमरा होगा जहाँ पे आप अपनी गंदम को स्टोर करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दिस इज ए फार्म हाउस, तो यहाँ पे फील्ड्स भी हैं, क्रॉप्स लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो ग्रेन्स होता है तो वो बार्न में रखा जाता है, ठीक है ना। ओके जी, टर्की इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए बर्ड, ठीक है। यू कैन लुक एट दिस इन टू द, यू कैन लुक एट क्लोजर। ओके जी, नो ट्री। अब ट्री तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन अ गुड ऑब्जर्वर विल सी दैट एप्पल्स आर हैंगिंग ऑन दिस ट्री, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ए लश ग्रीन ट्री एंड फुली राइट एप्पल्स आर हैंगिंग ऑन दिस ट्री। तो ये जो अच्छे ऑब्जर्वर्स होंगे वो खुद से एडजेक्टिव्स लगा के और उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्रिएटिव राइटिंग को। सो हिल्स क्या होती हैं? जो छोटे पहाड़ियां होती हैं, दे आर कॉल्ड हिल। अच्छा जी, आगे है पॉन्ड। पॉन्ड किसको? छोटा सा तालाब होता है जहाँ से बकरियां, भैंसे, गाय पानी पीते हैं। सो दिस इज ए वेल, वेल कुएं को कहते हैं। सो लैम्ब इज द बेबी ऑफ शीप, ठीक है। Okay ji, now look at this picture and you can see many people are doing many activities, right? Now some vocabulary is also written inside the picture as well, and we will discuss later on how we are going to start the paragraph and how we are going to add more vocabulary to it. Okay ji, first thing that captures our eyes is that this farmer. So you can name the characters. You can name the characters. For example, you can say this is a farmer and his name is Ramzan and he is driving a tractor. And you can name these boys any names you can give to these boys, those who are sitting in the trailer. For example, Saad and Fahad are enjoying the ride in the trailer. So you can describe their hairstyle also. You can describe Mr. Ramzan's style of wearing something. For example, you can say he is wearing a turban on his head. He has a big mustache and he is carrying or he is having a piece of cloth on his right shoulder. And he is driving. You can also say he is in angry mood or he is in happy mood. So some students sometimes say that the cover of the engine is broken as well. So you need to be very good observers. When you are discussing something, you need to be very good observers. Okay ji. Now look at this. There is a fence. Beside Mr. Ramzan, there is a fence.
फेंस किसको कहते हैं बेटा? बाड़ को कहते हैं। ये जो लकड़ी की है, ये जो लकड़ी की लगी हुई है डंडे से, ये क्या लगी हुई है? बाड़ सी लगी हुई है, जिसके अंदर एनिमल्स को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ए फेंस, ये बाउंड्री से बनाई हुई है। तो इनसाइड द फेंस यू कैन सी देयर आर 2 हॉर्सेस, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये बहुत अच्छी नस्ल के हॉर्स हैं, ये रेस के लिए भी जाते हैं, इनसे रेस लगाई जाती है, या दे आर रेस हॉर्सेस। आप कुछ भी इस तरह का ऐड कर सकते हो। अब इनके कलर्स बता सकते हो, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, या एक ब्राउन है, एक व्हाइट है, और ये कौन सी आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं। डू यू नो हॉर्सेस की आवाज को हम क्या कहते हैं? नेहिंग। दे आर नेहिंग, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो ब्लैक हॉर्स इज नेहिंग। Now in front of the fence, you can see 2 cows are standing. One cow is licking its calf. Licking क्या होता है? चाटना। आपको पता है ना कि एनिमल्स की आदत होती है कि वो अपने बच्चों को चाटती हैं, साफ करते हैं। तो you can see that this cow, this is black and white cow, and it is licking its baby. Now, what is this cow doing? This cow is drinking water from the pond. Now, you can see this cock. Now, cock is sitting on the fence. ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? अजान दे रहे हैं। आप कह सकते हैं, ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ना, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। आप कह सकते हैं। अब अजान देना को क्या इंग्लिश में कहते हैं? द कॉक इज क्रोइंग। क्रोइंग, CROWING. The cock is crowing. Okay ji, now move here. There is a goat as well. Do you like goat? I also like goat. अच्छा जी, now goat is eating hay, or you can say goat is eating grass, right? You can tell the color of the goat as well. Okay ji. Now let us cover one area first. Okay ji, now look at this. Now you can see there are hens and chicks, and they are pecking. They are pecking. Pecking क्या होता है बेटा? Pecking होता है जब चिड़िया या मुर्गी दाना चुगती है ना, नीचे ग्रेन्स गिरे पड़े होते हैं और वो कुछ खा रही होती हैं ऐसे अपनी चोंच के साथ, अपनी बीक के साथ। So this is called pecking. PECKING. Vocabulary I will give you later on, ठीक है ना बेटा। और इनका ये जो डरबा होता है, यानी कि ये जो हाउस सा बना हुआ होता है किसका? हेंस का। इसको हम क्या कहते हैं? पेन्स। यू कैन लुक हियर, हेंस लिव इन पेन्स, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, अब आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर में 2 रूम्स हैं। ये दोनों बार्न है, ठीक है। स्पेशली ये जो नेक्स्ट वन है ब्लैक कवर वाला, ब्लैक छत वाला, दिस इज ए बार्न. So you can say that in the right corner of the picture there is a barn. What is the use of barn? We store grain in a barn, right? Okay ji. Now come to this. You can say in the background there are 5 lush green shady trees and fully ripe apples are hanging on the trees. आप ऑरेंजेस भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट? ओके जी, नाउ मूव हियर. यू कैन से वन हॉर्स इज स्टैंडिंग इन द फील्ड्स एंड शीप आर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग क्या होता है? चरना, ठीक है. GRAZING. शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यू कैन सी 3 dogs inside the fence. जी, अब आप इनको अपनी पसंद के मुताबिक आप इनकी वो भी नस्ल भी लिख सकते हैं. दे आर जर्मन शेफर्ड्स. दे आर आपको ज्यादा पता होगा कि कौन कौन सी नस्लें होती हैं डॉग्स की. सो यू कैन से एनीथिंग एल्स. सेशन डॉग्स हैं या जर्मन शेफर्ड्स हैं या कोई भी आप उनको कह सकते हो, ठीक है. देर आर 3 डॉग्स और इनके अगर आप नेम्स देना चाहें इट्स अप टू यू. अच्छा जी, नाउ देर आर हिल्स इन द बैकग्राउंड. The weather is very pleasant today. Now the birds are flying in the air. Now come to the next. There is a farmhouse in the left corner of the picture. So this
फार्म हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर अली। मैंने तो खुद से नाम दे दिया, आप खुद से अपनी मर्जी से कोई नाम दे दें, ठीक है। सो दिस फार्म हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर अली। नाउ मिस्टर अली एंड मिसेस अली आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक एंड मिसेस अली इज पुशिंग द pram of her baby and the baby is very happy and it is playing and one donkey is grazing beside the track. There is one well. Mr. Ramzan takes water out of this well. So here are two girls standing. So you can say Amna and Fatma are standing with the fence. They want to feed the donkey with hay. Now you can tell that what they have. The one Fatma is wearing frock and Amna is wearing shalwar kameez, and like this you are going to describe them. So some adjectives you will put inside and the topic is the picnic on the farm. ठीक है बेटा, मैंने इन चीजों को डिस्कस किया, लेकिन आपने इससे ज्यादा डिटेल से, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा एडजेक्टिव लगा के आपने इनको डिस्कस करना है। नो काम है यार। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस किसको कहते हैं बेटा? हिदायत को कहते हैं। आप में से कुछ बच्चे हैं जो हिदायत सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वो सुनते हैं और भूल जाते हैं टीचर ने कहा क्या था। अब इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर्म में आपको मैं दे रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके जी, नंबर 1 इज यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि व्हाइल डिस्क्राइबिंग योर पिक्चर यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी कैरेक्टर एंड देयर एक्टिविटीज इफ एनी। बेटा पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए मोस्टली दी भी वही पिक्चर जाती है जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी टेक प्लेस कर रही होती है, ठीक है। तो आपने कैरेक्टर जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप ह्यूमन बीइंग्स को नाम भी दें, ठीक है। नाम देने से उससे ज्यादा जो पिक्चर होती है वो ज्यादा लाइफ लाइक लगती है। नेम द कैरेक्टर्स, यूज एडजेक्टिव्स टू मेक योर पैरा इंटरेस्टिंग, ठीक है, एडजेक्टिव्स यूज करें। और नेक्स्ट है यूज द गिवन वर्ड बैंक इन योर सेंटेंसेस। जो वर्ड बैंक उन्होंने दिया वर्कशीट के नीचे और कुछ मैंने भी लिखा हुआ है, उसको आपने ऐड करना है अपने पैराग्राफ में। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर माइन्यूटली। तस्वीर को बहुत गौर से देखना है, एक एक चीज को देखना है, ठीक है। यू विल स्टार्ट ए पैरा इन दिस वे। आपने पैराग्राफ किस तरीके से देखना है कि स्टार्ट कैसे करना है। आई कैन सी अ फार्म हाउस इन दिस पिक्चर। हमेशा जो भी पिक्चर आपको मिलेगी आपने इसका स्टार्ट कैसे करना है, आई कैन सी। मिसाल के तौर पे अगर किसी पिक्चर में बुक शॉप है तो आप कहेंगे आई कैन सी अ बुक शॉप इन दिस पिक्चर, ठीक है। आप अगर कहीं पे गार्डन देखते हैं तो आप लिखेंगे आई कैन सी अ गार्डन इन दिस पिक्चर। यहाँ पे हमें फार्म हाउस नजर आ रहा है, सो वी कैन से आई कैन सी अ फार्म हाउस इन दिस पिक्चर। डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ये जुमला आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में दूसरे नंबर पे भी लिखा जा सकता है। मिस्टर अली इज द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस, यानी कि इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? मिस्टर अली। डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। आई कैन ऑल्सो सी मेनी एनिमल्स। Uncle Ramzan is the farmer and he takes care of his farmhouse. He is driving a trailer. He is wearing a turban on his head. He has a big mustache. He has a piece of cloth on his shoulder. Fahad and Ahmad are enjoying the ride on the trailer. So, in this way you can start your paragraph and you are going to continue your paragraph. Okay, move to the next. Some vocabulary I have given to you. For example, fence. बाड़ को कहते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पैक क्या होता है? जब हेन्स वो खा रही होती हैं, मुर्गियां दाना चुग रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड पैक। मूइंग क्या है? मूइंग इज द साउंड ऑफ काउ, ठीक है। काउ जब आवाज निकालती है, गाय आवाज निकालती है, दैट इज कॉल्ड मूइंग। तो काउ इज मूइंग, हॉर्स इज नेहिंग, कॉक इज क्रोइंग एंड काउ इज लिकिंग इट्स बेबी। ग्रेजिंग, लिकिंग है चाटना, ग्रेजिंग क्या है? चरना। एंड लश ग्रीन ट्रीज, ठीक है। फुली राइट एपल्स आर हैंगिंग एंड फील्ड्स। सो दिस वोकेबलरी आई गिव टू यू फॉर योर हेल्प।
और बेटा जल्दी ना किया करें काम करने में, हेस्टी हो जाते हैं आप लोग और मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को ना आप भूल जाते हैं. You are not going to forget my instructions. You are going to follow my instructions. If you will not follow, then I will not accept your work. Follow my instructions, and you are going to look at this picture very minutely, especially the previous students, the old students. Beta, you have already been doing this activity in class 5. In class 5, you have already described many pictures. So this is nothing new for you. And those who are new students, I have better discussed everything in the detail. Even then, if you have any problem, you can discuss with me and do this. And this is your assignment. Okay, thank you and good luck.